Assalamu alaikum, my dear students of class 6. Welcome to your English lecture. I am your teacher, Mariam Hassan. Okay, dear students, today we are going to do the part from your understand and communicate vocabulary lesson number 1, which is on page number 208. Okay, as you can see right now on the slide, there is a part A, and in which part A has two exercises, and both two exercises are omit, so no need to write it, just write down omit on them. And before starting it, put down date and date too. Okay, I'm again repeating this, that these exercises are omit, so no need to do them. Okay, G. Now, still on page 208, exercise B, differences between words. There are two words, as you can see right now, ask and call. Why, when ask is used, asked is to request or an answer to a question. यानी हमने ask का इस्तेमाल तब करना है when we have to request somebody, और या फिर हमने किसी सवाल का जवाब देना हो. ठीक है ना. ask का मतलब क्या होता है? पूछना. एंड call का मतलब होता है बुलाना. यानी जब हमने किसी को बुलाना हो या फिर हमने किसी को बात कहने के लिए, कोई चीज़ कहने के लिए करवाना हो काम, तो हम कॉल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना. सो आस्क पूछने के लिए, कॉल बुलाने के लिए. दैट्स यू कैन ऐड इन योर मेमोरी. सिंपल, कि कोई ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, नाउ द एक्सरसाइजेस, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स फॉर ईच सेंटेंस. यानी आपको दो वर्ड दिए गए हैं, इनमें से आपने एक को चूज़ करना है. एंड इट्स टोटली अप टू यू. यू वांट टू अंडरलाइन द वर्ड, you want to encircle the word, or you want to tick the word. It's totally up to you. You can use it pencils. If you're using pencils, then please, it should be visible and it should be very neatly written on your books. So write down very neatly on books. Okay. Please ask or call them to stand away from the fire. So please ask them to stand away from the fire. उनसे कहो कि वो आग से दूर रहें. Ask is the answer. Jane asked or called her dog away from the rubbish heap. Jane called her dog away from the rubbish heap. Jane ने अपने कुत्ते को बुलाकर कहा कि वो कूड़े के ढेर से दूर रहे, या आवाज़ देकर कहा. Did you ask or call her to buy this? यहाँ पे हम ask लगाएंगे कि आपने उससे पूछा ये ख़रीदने के लिए. ठीक है. The man who asked or called for the principal had a message to give him. अब यहाँ पे the man who asked, यानी यहाँ पे asked का हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि आदमी ने प्रिंसिपल के बारे में पूछा उनको पैगाम देने के लिए. The little boy asked or called to his father for help. So the little boy called his father for help. यानी छोटे बच्चे ने अपने बाप को मदद के लिए पुकारा. ठीक है. He had to ask or call for several minutes before his father heard him. He had to ask, उसे अपने वालिद से पूछना पड़ेगा, several minutes before his father heard him. ठीक है. यहाँ पे ask आएगा. Next देखें. Next, on next slide, it is on page 209. Please ask or call a doctor if he doesn't stop bleeding. तो यहाँ पे हम हमेशा याद रखें, हम we call a doctor, हम डॉक्टर को बुलाते हैं. Have you asked or call him to come? यहाँ पे हम asked का वर्ड यूज़ करेंगे. क्या आपने उससे पूछा आने के लिए. Next, देखिए, the chairman asked or called the meeting to order. Obviously, whenever we have to meeting के लिए बुलाता हो तो we use called word. ठीक है. तो there the chairman called the meeting to order. Next, देखिए, during the meeting he had to ask or call the young delegate to attention several times. During the meeting he had to call the young delegate to attention several times. उन्होंने उनकी तरफ बुलाकर कहा कि वो मतवज्जो हों. ठीक है. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन पार्ट B's exercise. Okay जी.
The next exercise is fill in the blanks in each sentence with a suitable preposition or adverb. Also note the different ways in which ask and call are used. यहाँ पर हमने prepositions यूज़ करनी है इन blanks में. preposition क्या होती है? I've told you earlier, जिसके बारे जो हमें noun या के बारे में बताते हैं, pronouns के बारे में बताते हैं, वो हमारे prepositions होते हैं. ठीक है. और इन प्रपोजिशन को यूज़ करने से हमें आस्क और कॉल का वाज़ा फ़र्क में पता चल जाएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. द प्रिंसिपल आस्क्ड मी इन आएगा यहाँ पे. व्हेन ही सॉ मी स्टैंडिंग आउटसाइड हिज ऑफिस. प्रिंसिपल ने मुझे अंदर आने के लिए पूछा, ठीक, कहा जब मैं बाहर खड़ा हुआ था. ठीक है. तो यहाँ पे इन आएगा. नेक्स्ट देखिए. शी आस्क्ड मी अप टू सी हर बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर. ठीक है. उसने मुझे पूछा ऊपर आने के लिए कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर बेडरूम्स देख सकूं. नेक्स्ट देखिए. वेन एवर आई विजिट माई ग्रैंड मदर शी आस्क्ड अबाउट माई ब्रदर हु इज़ स्टडिंग ओवरसीज. जब भी मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ वो हमेशा मेरे भाई के बारे में पूछती हैं जो बाहर पढ़ रहा है. सो about is the answer of C statement. D statement देखिए. Since we both like his company, जब से हमें उसकी दोस्ती पसंद है, why don't we ask him हम over this evening कि हम उसको इस शाम अपनी तरफ बुलाते हैं. over spelling में over over. Next statement. He told me not to ask for trouble. यहाँ पे for trouble ये एक idiom है जिसका मतलब है मुसीबत को दावत मत दो. But to leave the dog alone. के कुत्ते को अकेला छोड़ दिया जाए. उसने कहा कि मुसीबत को दावत मत दो और कुत्ते को अकेला छोड़ दो. नेक्स्ट स्टेटमेंट. विल यू कॉल एट हिज हाउस एंड गिव हिम. एट आएगा यहाँ पे. क्या तुम उसको उसके घर बुलाओगे एंड गिव हिम दिस पार्सल ऑन योर वे होम. और क्या तुम उसे ये पार्सल घर जाते हुए दे सकते हो. सो इन एफ स्टेटमेंट राइट डाउन एट. नेक्स्ट देखें. फरीदा कॉल्ड ऑन टू ऑफ हर फ्रेंड्स दैट इवनिंग बट बोथ ऑफ देम वर आउट. फरीदा ने अपने दो दोस्तों को बुलाया लेकिन वो दोनों ही घर पर, बट बोथ ऑफ देम वर आउट, लेकिन वो दोनों ही बाहर थी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए. द चेयरमैन कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है मुतालबा करना. अपॉन की स्पेलिंग है UPON. अपॉन द चीफ जज टू गिव एन असेसमेंट ऑफ द डिबेट. ठीक है. चेयरमैन कॉल्ड अपॉन. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए. द टीचर कॉल्ड फॉर ऑल द बुक्स शी हैड लेंट टू हर स्टूडेंट. टीचर ने सबसे किताबें मंगवाई जो उन्होंने तालिब इल्मों को दी हुई थी. ठीक है. दिस एक्सपीडिशन कहते हैं मुहिम को. दिस एक्सपीडिशन कॉल्स फॉर एंड्योरेंस एंड करेज. ये एक्सपीडिशन जो है बहादुरी और बर्दाश्त को के लिए बुलाती है. यानी दीज आर इडियम्स जिसमें हमें मतलब हम आम बात को दूसरे तरीके से कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे. Both B and C you have to do it on your books only and no need to submit these books in schools. ठीक है. आपने काम बुक का सबमिट नहीं कराना. जो आपका होमवर्क मिले विच इज़ ऑन योर कॉपीज़ वो आप सबमिट कराएंगे. अच्छा जी. देयर इज़ अ लिटिल होमवर्क फॉर यू. मेक 2 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच वर्ड. यानी आपने कॉल एंड आस्क से 2 सेंटेंसेस बनाने. यानी कॉल से 2 सेंटेंस बनाएंगे एंड आस्क से 2 सेंटेंस बनाएंगे. ओके जी एवरीवन. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.